Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. A very warm welcome to Rifa International College. My name is Rahil Ahmed, and today we are going to discuss chapter 11, Professionalism at Work, Business Etiquette, Ethics, Teamwork, and Meeting, etc. Today we will try to cover three objectives of chapter 11. Point number 11.1, 2 and 3. We will try our best to cover these three topics within that specific video. So once again I would like to remind you boys and girls here that the name of the chapter is Professionalism at Work of Business Etiquette, Ethics, Teamwork and Meetings. So as we have the tradition that before going to start the lecture, we will have to see the objective at the beginning. So the first objective is understanding professionalism, start developing business etiquette skills, and build ethical mindset and important qualities at digital age work seek. Second objective, use your voice as communication tool, master face-to-face workplace interaction, foster positive relations on the job, and accept as well as provide constructive criticism gracefully. These are two objectives. There is a third one, practice professional telephone skills and polish your voice mail etiquette. We will try our best particularly to cover that third objective in today's lecture, but definitely we are going to start the first objective at a very beginning. So let's start. The first objective, understanding professionalism. Developing professionalism, same thing is here. Developing professionalism at business etiquette skills at office and online. बच्चों पहली बात तो ये है कि ये बात आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेनी चाहिए, जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि good manners and business like professionals, professionalism, demeanor are among the top skills recruiters seek in applications. Employers refer to courteous and professional job candidates over those who lack these skills and traits. तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कहने की ये है कि ऐसे जो लोग जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जो sorry for the delay, actually I was looking for my phone to answer the call. Anyhow, तो इसमें मैं बात कर रहा था कि हम ये डेवलपिंग प्रोफेशनलिज्म होता क्या है, या इसकी ये क्या क्या चीज़ है इसमें. गुड मैनर्स एंड बिजनेस लाइक प्रोफेशनलिज्म डेमिनर आर अमंग टॉप स्किल्स रिक्रूटर्स सीक इन एप्लीकेंट्स. ये जो क्वालिटीज़ हैं ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो जो कैंडिडेट्स हैं उसमें ये चीज़ें देखते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर्स रेफर कॉर्टियस एंड प्रोफेशनल job candidates over those who lack these skills and traits. Courteous and professionalism, ये दो चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जो है वो लुक आफ्टर की जाती हैं, चेक की जाती हैं किसी भी कैंडिडेट में जो कि मार्केट में आता है. However, you can learn how to be courteous, civil and professional. So let's start today's proceedings. इसमें आज हम जो सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे और उसको हम शुरू कर रहे हैं. प्रोफेशनलिज्म, कॉर्टियस होना, सिविल होना एंड प्रोफेशनलिज्म होना. अंडरस्टैंडिंग प्रोफेशनलिज्म एंड कॉस्ट ऑफ इनसिविलिटी. सिविलिटी द ऑपोजिट ऑफ इनसिविलिटी.
तो बच्चों ये छोटी सी आपके सामने डिस्क्रिप्शन रखी हुई है, ये आप अगर समझ लेते हैं बात को तो आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे, यू विल गेट द आइडिया दैट व्हाट इज़ प्रोफेशनलिज्म. सो the term professionalism and its synonyms such as business etiquette or protocol, soft skills, social intelligence, polish, civility all have one element in common. They describe desirable workplace behavior. बच्चों उसमें ये बताने की कोशिश की गई है द टर्म प्रोफेशनलिज्म एक्चुअली कहता है कि ये सिनोनिम है, किन का सिनोनिम है? बिजनेस एटिकेट का, प्रोटोकॉल का, सॉफ्ट स्किल्स का, सोशल इंटेलिजेंस का, पॉलिश का और सिविलिटी का. ऑल हैव वन इन कॉमन थिंग दैट डिस्क्राइब डिजायरेबल वर्क प्लेस बिहेवियर, के आपका बिहेवियर जो है वो बड़ा ही अकॉर्डिंग डिजायरेबल, ऐसा बिहेवियर जो ज़रूरत हो, जो डिमांड हो किसी भी कंपनी की, वैसा बिहेवियर होगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल बनना शुरू हो जाएंगे. as workloads increase and face-to-face meetings decline, bad manners are becoming alarming common in the workplace. हो ये रहा है कि वर्कलोड जो है वो बढ़ रहा है और फेस टू फेस मीटिंग जो है वो डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही हैं, जिसमें ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन मैसेजेस, ईमेलिंग और इस तरह के सारे टेक्स्ट मैसेजिंग हो रहे हैं, जिससे जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है वो कम होती जा रही है. इसका नुकसान ये हो रहा है कि बैड मैनर्स डेवलप हो रहे हैं, बिकमिंग अलार्मिंग कॉमन इन अ वर्क प्लेस मैसेज. बहुत सारी जगहों पर इसकी एग्जांपल्स हमारी किताब में भरी पड़ी हुई हैं. अमेरिका की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स दी गई हैं जहाँ पर बैड मैनर्स जो है वो बहुत कॉमन है, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट हैव अ सफिशिएंट opportunity to be face to face with the customer. So following are a few traits, make and skills that define professional behavior to foster positive workplace relations. तो कुछ आने वाले मज़ीद जो स्टेप्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको कि अपना वर्क प्लेस बिहेवियर, सोशल रिलेशन जो है वो पॉजिटिव बन जाए उससे, और आप प्रोफेशनल और ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगे. Let's see it. So understanding professionalism and cost of civility. इसमें सबसे पहले आ जाता है civility. Civility क्या होता है? Management consultant Patricia M. Bubler defines, ये basically बता रहा है, Patricia M. Bubler defines rising incivility at work as behavior that is considered disrespectful and inconsiderate of others. यानी कि आप civility का जो अगेंस्ट वर्ड है वो बिहेवियर ऐसा होता है जो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए और दूसरों की अहमियत को वो ना समझे. द एडिटर ऑफ विकीपीडिया, द फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, क्लियरली डिफाइन द undesirable behavior as follow. Incivility consists of one of the more following behaviors: personal attacks, rudeness and disrespectfulness. तो इनसिविलिटी में आप क्या करते हैं कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाते हैं, बिहेवियर आपका ख़राब हो जाता है, आप जो है वो अटैकिंग पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, और साथ में पर्सनल अटैक्स, रूडनेस आ जाती है, आप कमेंट्स जो हैं वो आपके नेगेटिव हो जाते हैं. उसके बाद आता है पॉलिश. यू मे हेयर बिजनेस पीपल रेफर टू समवन एज बीइंग पॉलिश्ड और डिस्प्लेइंग पॉलिश व्हेन डीलिंग विद अदर्स. इट मीन्स हेयर के बंदा ऑलरेडी ट्रेंड है. A person is already ready, he has know how to do and what to do with the customers. It means that one must have the following traits: shaking hands, improving one's voice quality, listening, presenting skills and more. के इंसान के अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए पहले से ही, कि उसे हाथ मिलाना आता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दबा के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैंड भी नहीं होना चाहिए. इम्प्रूविंग वंस क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, आपकी आवाज़ इस तरह से अच्छी होनी चाहिए कि सुनने वाले को आसानी से हर चीज़ समझ आ जाए. लिसनिंग, और आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग पावर जो है वो भी बेहतर होनी चाहिए. फिर प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बेहतरीन होने चाहिए. जब आप कुछ चीज़ प्रेजेंट करें तो वो प्रॉपरली प्रेजेंट हो, उसमें कोई भी चीज़ जो है वो रह ना जाए. तो ये स्किल्स होते हैं बेसिकली. और जब ये स्किल्स किस में आते हैं? ये पॉलिश में आते हैं. व्हेन एनी बिजनेस पर्सन टॉक अबाउट अ पर्सन इज पॉलिश्ड और नॉट, तो इट मीन्स के इंसान ये सारी स्किल्स के बारे में बात कर रहा होता है. फिर उसके बाद आ जाता है बिजनेस
and defining dining etiquettes. Proper business attire, dining etiquette, and other aspects of your professional presentation can make or break your interview. का बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ पर या बिगनिंग पर इन डिफरेंट कंपनीज वहाँ पर डाइनिंग का एक जो है ख़ास तौर पर खाना खाने के जो इखलाक हैं या आदाब हैं वो उनको बड़ा फॉलो अप किया जाता है. इंसान के अंदर ये उन्हें पता होना चाहिए कि टेबल मैनर्स क्या होते हैं, हाउ टू हैंडल फोक और स्पून और प्लेट्स एट्सेट्रा. तो हाउ टू स्टार्ट ईटिंग, हाउ टू एंड, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है. किस तरह से मील शेयर करना है दूसरों के साथ. तो ये आपके डाइनिंग एटिकेट्स जो होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि कारोबारी हजरात जो होते हैं, बिजनेस मैन जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो लंच या डिनर्स वगैरह पर या हाई टी वगैरह पर बुलाया जाता है. तो उसमें फिर जो है वो आपको अपने एटिकेट्स शो करने पड़ते हैं. सोशल इंटेलिजेंस आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट इसी में. Occasionally you may encounter the expression social intelligence in the sense, in the words of one of its modern proponent, it is the ability to get along well with others and to get them to cooperate with you. जी, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप किस तरह से आप सोशल इंटेलिजेंस शो करते हैं, आप किस तरह से लोगों के साथ मेल जोल बढ़ाते हैं. अचानक अगर सोशल इंटरेक्शन हो जाए किसी जगह पर तो उसमें आप सोशली कितना पॉजिटिव हैं, कितना सिविल दिखाते हैं, आपका सिटीजनशिप कितनी अच्छी है. तो सोशल इंटेलिजेंस रिक्वायर्स अस टू इंटरेक्ट वेल, बी पर्सपेक्टिव. हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि क्या चीज़ क्या एक्सपेक्टेशन है लोगों की. शो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स अदर्स, लोगों के बारे में जो है वो आप हसास हो ताकि ऐसी बात ना मुंह से निकले जो नेगेटिविटी हो. ग्रैस्प सिचुएशन क्विकली एंड एक्यूरेटली, और सिचुएशन को इतनी अच्छी जल्दी से और तेज़ी से जो है उसको जो है वो उसको समझ लेना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए. लास्ट स्किल जो है, लास्ट चीज़ जो है जो डेवलप करती है प्रोफेशनलिज्म, जो लास्ट पॉइंट है उसको मैंने खासा प्रोमिनेंटली करके लिखा हुआ है, और वो ये है कि सॉफ्ट स्किल है. सॉफ्ट स्किल्स जो है वो कैसे क्या होते हैं, ऑल्सो नोन एज पीपल स्किल और इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसे कहा जाता है. इसमें कम्युनिकेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लीडरशिप होती है, टीम वर्क होता है एंड टाइम मैनेजमेंट होता है. किसी भी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन सबसे अहम रोल प्ले करती है. कम्युनिकेशन आपका मतलब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन आपका सारा कुछ ही है. मीन टू से कि इन अ कम्युनिकेशन, इन अ सिंगल वर्ड, दैट इज अ कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग, योर एथिक्स, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर प्रेजेंटेशन ऑफ योर सेल्फ, your wearing of clothes about a specific time and meeting in different meetings. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कम्युनिकेशन में आ जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाती हैं. फिर आप बिजनेस प्रोफेशनलिज्म जब बन जाते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जब आपके पास आपके साथ जूनियर्स भी हो तो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो जाती हैं, और जब आप अपने लोगों के साथ बैठ के काम कर रहे होते हैं तो आप में टीम वर्क भी होना चाहिए. आप लोगों की बात भी सुने, टीम के तौर पर काम करें. और सबसे जब आप टीम एक लीडरशिप की क्वालिटीज़ में एक टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपने लोगों को 10 बजे का टाइम दिया, खुद आप 11 बजे पहुंचे, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव आस्पेक्ट जो है उसको कंसिडर किया जाता है. ओके, रिलेटिंग प्रोफेशनल बिहेवियर टू एथिक्स. A broad definition of professionalism also encompasses another crucial quality in a business person, ethics or integrity. अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ यहाँ पर. प्रोफेशनलिज्म बनने के लिए, प्रोफेशनल बनने के लिए कारोबार के अंदर या अपने फर्म के अंदर, वो रिलेटिंग प्रोफेशनल बिहेवियर टू एथिक्स, ऐसा बिहेवियर हो जो एथिकली भी जो है वो अच्छा हो. एथिक्स में इखलाकियात, इंटेग्रिटी और एथिक्स सेम एक ही बात है. इसमें ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं. देयर आर 6 डायमेंशंस ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर. ठीक है जी. प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए एथिकली 6 मुख्तलिफ जाविये जो हैं वो बयान किए जाते हैं, जिसको लुक आफ्टर किया जाता है. लिहाजा हम उनको चेक कर लेते हैं, उनको एक दफ़ा उन पर एक नज़र दौड़ा लेते हैं. उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कौन सी
जो 6 एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। नंबर 1 सबसे पहले कर्टेसी रिस्पेक्ट। आपके पास प्रॉम्प्टनेस, गिविंग एंड एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली, ग्रेशियसली, अपोलोजाइजिंग फॉर एरर्स एंड सिंसियरिटी। ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी कर दी जाती हैं तो कर्टिसी बन जाती है, रिस्पेक्ट बन जाती है, आप इज्जत करना शुरू हो जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आ जाता है डाइनिंग एटिकेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, गुड हाइजेनिक एंड ग्रूमिंग, अट्रैक्टिव बिजनेस अटायर। जब ये इनको सबको इकट्ठा किया जाएगा, किसी एक पॉइंट पर लेकर आया जाएगा तो अपीयरेंस अपील बन जाएगा, आपकी अपीयरेंस कितनी अच्छी है। ओके, नेक्स्ट थिंग आ जाती है एबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज, फेयर एंटरटेनमेंट ऑफ अदर्स एंड सेल्फ कंट्रोल। इसे टॉलरेंस, टैक्ट भी कहा जाता है। फिर इसमें आ जाता है हम ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्टिंग अदर्स, फेयर कंपटीशन एंड एम्पैथी। इसे हम कहते हैं ऑनेस्टी, एथिक्स। देन वी विल लुक आफ्टर इट एंड डिपेंडेबिलिटी, ऑनरिंग कमिटमेंट एंड कीपिंग प्रोमिसेस, कंसिस्टिंग परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस आ जाता है, इसे कहा जाता है। ठीक है जी। और उसके बाद हेल्पफुलनेस है, शोइंग अप प्रिपेयर्ड, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी वर्क है, इसे कोलिगिबिलिटी, शेयरिंग आ जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स जो हैं इनको 6 डायमेंशन ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर कहा जाता है। ये बच्चों आपको याद रखने की चीज़ें हैं और इसको ना सिर्फ याद रखना है बल्कि इस पर आपने अमल भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है हमारा, यूज योर वॉइस एज अ कम्युनिकेशन टूल, मास्टर फेस टू फेस वर्क प्लेस इंटरेक्शन, फोस्टर पॉजिटिव रिलेशन ऑन द जॉब एंड एक्सेप्ट एज वेल एज provide constructive criticism gracefully. Let's see it in a detail. So कम्युनिकेटिंग फेस टू फेस ऑन द जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये बड़ी फ़ायदेमंद है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इट इज़ द रिचेस्ट कम्युनिकेशन चैनल बिकॉज यू कैन यूज़ योर वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज टू मेक पॉइंट, कन्वे वार्मथ एंड बिल्ड पॉजिटिव रिलेशन। बड़े ही ज़बरदस्त पॉइंट बयान किए गए हुए हैं और याद रख लें ये आजकल बेसिकली ना काफ़ी लैक कर गई हुई है, कमी आ गई हुई है इसमें, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है हमारे पास फेस टू फेस होने की हर एक बंदे के साथ। मोस्टली हम नहीं अवेलेबल होते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी, फ़ोन कॉल्स पर या मैसेजेस पर या ईमेल वगैरह पर हमारी सारी डिस्कशन हो रही होती है, जिससे जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो काफ़ी कम हो गई हुई है। लेस लाइकली टू मिसअंडरस्टूड। अब जब फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप मिसअंडरस्टूड नहीं होते, ना ही दूसरे को मिसअंडरस्टूड करते हैं। फार बेटर इन कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स। और इसमें भी बहुत फ़ायदा होता है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग आर्ग्यूमेंट चल रही होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो ख़त्म होने के चांसेस हो जाते हैं। यूजिंग योर वॉइस एज अ communication tool. A voice carries much non-verbal meaning that businessmen, executives, and everyday people consult coaches and speech therapists to help them avoid bad behavior and less intelligent. बेसिकली वॉइस जो है हमारा जो गुफ्तगू का अंदाज है वो क्या कर रही होती है, वो ये कर रही होती है कि वो बहुत सारे आजकल के बिजनेसमैन हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एवरीडे जो हर तरह के लोग हैं, वो आजकल अपनी कोचेस जो है वो मुख्तलिफ कोचेस कंसल्टेंट कोच को कंसल्ट करते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट को कंसल्ट करते हैं कि किस तरह से अवॉइड किया जाए बैड बिहेवियर को और लेस इंटेलिजेंसी शो की जाए। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स हैं जो जिनको जो है वो हमने मद्देनजर रखना होता है। फॉलो द वैल्यूएबल टिप्स टू इम्प्रूव योर वॉइस क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन है। फॉर एग्जाम्पल वेरी क्वाइट सिंपल थिंग, लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ और मैं अपने वर्ड्स को प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर रहा, मिस प्रोनाउंस कर रहा हूँ, या मैं उनको एक्यूरेटली प्रोनाउंस नहीं कर रहा, या उनको मैं मिक्स कर रहा हूँ वर्ड्स को, तो डेफिनेटली सुनने वालों के लिए भी ये बड़ा ही बुरा लगेगा और मैं उससे क्या होगा, मैं अपना पूरा पॉइंट ऑफ व्यू बयान ही नहीं कर पाऊंगा, थॉट बयान नहीं कर पाऊंगा। इट मीन्स कि मैंने अपनी थॉट इनकम्प्लीट प्रेजेंट किया और जो कि स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लिहाजा प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन इन्वॉल्व्स सेइंग वर्ड्स करेक्टली एंड क्लियरली विद एक्सेप्टेड साउंड्स। Voice quality, it identifies your personality and mood. Enthusiastic, friendly, speedy, sluggish,
ये वॉइस क्वालिटी होती है बेसिकली जो बता रही होती है कि आपका मूड कैसा है, बहुत सारे हालात बता रही होती है। पिच, अब आपकी टोन, लहजा, इट मीन्स हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड। पिच का मतलब क्या है, बहुत ऊंचा बोलना, कम बोलना, आहिस्ता बोलना। इफेक्टिव स्पीकर्स यूज अ रिलैक्स कंट्रोल्ड वेल पिच्ड वॉइस टू अट्रैक्ट लिसनर टू देयर मैसेजेस। तो इफेक्टिव लिसनर जो होते हैं वो ये सारे काम करते हैं, कंट्रोल्ड, वेल पेस्ड और ऐसे लहजा इस्तेमाल करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो। फिर वॉल्यूम एंड रेट, यानी कि आपकी ऊंचाई आवाज़ की कितनी होनी चाहिए और अल्फाज कितने एक मिनट में आपने बोलने हैं। ये नॉर्मली 125 वर्ड जो है पर मिनट हम जो है वो यूज़ करते हैं इन प्रेजेंटिंग आइडियाज़, इन टॉकिंग कॉन्स्टेंटली। तो कंट्रोलिंग वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ टॉकिंग इज़ क्वाइट हेल्पफुल, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देन आ जाता है एम्फसिस, जोर देना किसी बात पर, किसी बात को अहमियत बढ़ाना। बाय एम्फसिस और स्ट्रेसिंग ऑन सर्टेन वर्ड्स यू कैन चेंज द मीनिंग। बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, उनको स्ट्रेस देते वक्त उनका मानी जो है वो चेंज हो जाती है। सो वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। मेकिंग वर्क प्लेस कन्वर्सेशन मैटर, जब हम वर्क प्लेस की बात करते हैं तो हमारी जो कन्वर्सेशन है, जो वर्बल कन्वर्सेशन है, फेस टू फेस डिस्कशन है, उसको हमें इतना उसको इतना जो है वो आइडियलाइज कर लेना चाहिए, उसको जिसे कहते हैं जो मैटर करे, इस तरह की बात होनी चाहिए। वर्क प्लेस कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व गिविंग एंड टेकिंग इंस्ट्रक्शंस, प्रोवाइडिंग फीडबैक और इंगेजिंग इन स्मॉल टॉक एट्सेट्रा। तो वर्क प्लेस कन्वर्सेशन कहता है कि वो मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व होती है, कि प्रोवाइड फीडबैक कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं या इंगेज कर रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म की छोटी छोटी सी गुफ्तगुओं के दरमियान। और फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल टॉकिंग फेस टू फेस। यूज़ करेक्ट नेम्स एंड टाइटल्स, जब हम किसी अपने जूनियर या सीनियर से भी बात कर रहे होते हैं तो हमें प्रॉपर नेम और उनके टाइटल्स, उनके डेजिग्नेशन के नाम पता होना चाहिए ताकि हम उनको बेहतर अंदाज से बुला सकें और अपना काम कर सकें। फिर उसके बाद आ जाता है चूज़ अप्रोप्रिएट टॉपिक्स, जब वो गुफ्तगू करने का अंदाज जो हो, ख़ास किस्म का टॉपिक जो है वो प्रॉपरली चूज़ किया हो और उसको रिहर्स किया हो, उसके बारे में पूरी हाव ना हो कि आप किस पर बात करने जा रहे हैं। देन अवॉइड नेगेटिव रिमार्क्स, और इसी तरह से जब हम फेस टू फेस बात कर रहे होते तो हमें अवॉइड करना चाहिए नेगेटिव रिमार्क का। स्ट्रेट अवे किसी चीज़ का इनकार करना, स्ट्रेट अवे किसी को रद्द करना और उस पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म करना, ये भी खासा जो है वो एथिक्स के ख़िलाफ़ ही चला जाता है। तो तकरीबन सॉरी फॉर दैट। देन गिविंग सिंसियर एंड स्पेसिफिक, लिसन टू लर्न, दूसरों की बात को सुनना और उनसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। गिवन सिंसियर एंड स्पेसिफिक प्रेज, जो है बड़ा खुश इखलाकी से और ऑनेस्टली बात को सुनकर और अगर ज़रूरी हो तो उसकी जो है वो तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। एक्ट प्रोफेशनली इन सोशल सिचुएशंस, कि अगर आप किसी जगह पर गैदरिंग में हैं तो आपको इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि आप यू नो हाउ टू डील पर्टिकुलर सिचुएशंस। देन रिसीविंग वर्क प्लेस क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली, क्रिटिसिज्म को जो है वो बर्दाश्त करना मैनफुली, वो बड़ा जो है वो बहादुरी वाला काम समझा जाता है उसको। ये इट इज़ नॉट एन ईजी वर्क टू डू। मोस्ट ऑफ अस हेट गिविंग क्रिटिसिज्म, हम तो क्रिटिसिज्म करना भी पसंद नहीं करते, लेकिन वैसे पाकिस्तानी होने के नाते हमें क्रिटिसिज्म करना वैसे नॉर्मली अच्छा ही लगता है, बट वी डिसलाइक रिसीविंग इट इवन मोर। लेकिन हम इसे हम क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने को तो बिल्कुल भी आदी नहीं है, चाहे गवर्नमेंट में हो, गवर्नमेंट से बाहर हो, जॉब कर रहे हैं, जॉब से बाहर हो, wherever we are, we do not like and receive criticism. However, giving and receiving criticism on the job is normal. लेकिन criticism जो है वो जॉब पर रहते हुए criticism को फेस करना वो एक नॉर्मल चीज़ है। The following suggestions can help you respond positively to criticism so that you can benefit from it. लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, जब क्रिटिसिज्म हो रहा होता है और कोई नेगेटिव बात आप पर हो रही होती है, चाहे आप बिजनेस में हैं या आप जॉब कर रहे हैं,
तो उसे सबसे पहले बगैर रोके सुनना चाहिए ताकि तमाम तर बात जो है वो आप तक पहुंच जाए, उसमें कोई चीज़ रह ना जाए, सो दैट कि वो इनकम्प्लीट ना हो। सम टाइम ऐसा होता है कि एट द एंड ऑफ द थिंग डिस्कशन वो बड़ी पॉजिटिव रह जाती है, बड़ी वो उसमें फ़ायदा हो जाता है इंसान का। डिटरमिन द स्पीकर्स इंटेंट, स्पीकर की जो इंटेंट है, वो जो उसकी जो 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 नीयत जिसे हम कह सकते हैं, वो उसको भी भांपने की कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक्नॉलेज वाई यू आर हेयरिंग, मीन टू से हेयर कि आप अगर सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं। डेफिनेटली यू आर रिप्रेजेंटेटिव और यू आर बीइंग वन ऑफ देम, यू विल हैव टू बी, इट्स योर राइट, इट्स योर ड्यूटी टू लिसन इट। देन डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसको डिटरमिन एक्नॉलेज व्हेन यू आर हेयरिंग, पैराफ्रेजेस व्हाट वाज सेड, इसको समझना भी समटाइम चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि नेगेटिव, हम अपने तौर पर नेगेटिव उसे समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा सब्र से और ठहर कर देखा जाए, बात को रुक कर देखा जाए, तो हो सकता है उसके मीनिंग जो है वो हमारे जो माइंडसेट होता है उसके बरखिलाफ हो। आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी हो तो मज़ीद जो है वो उसके लिए सर्च करना चाहिए, इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। अग्री इफ़ द कमेंट्स आर एक्यूरेट, ये कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलती मान लेने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, लेकिन अहम बात यह है कि आपको एक्यूरेट है, अगर वो बंदा आपके खिलाफ जो है वो क्रिटिसिज्म एक्यूरेट है तो उसे मस्ट एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू मेंड योर सेल्फ। डिसअग्री रिस्पेक्टफुली एंड कंस्ट्रक्टिवली, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आप राइट पर हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको डिसएग्री करना है, लेकिन रिस्पेक्टफुली एंड एक्यूरेटली, इज्जत के साथ, ना कि बेइज्जती के साथ। लुक फॉर अ मिडल पोजीशन, दरमियानी जगह पर रहें। मतलब ये है कि यहाँ पर आप ऐसा ना करें कि आप बहुत ज़्यादा अगर पॉजिटिव हैं तो इतना ज़्यादा जो है वो बदतमीज़ी कर जाएं या नेगेटिविटी पर चले जाएं जो कि आपकी पोजीशन को ख़राब कर दे। लर्न मोर क्रिटिसिज्म मोस्ट फ्रॉम क्रिटिसिज्म मोस्ट वर्क, ज़्यादातर ये होता है कि इंसान लर्न करता है। और इम्प्रूव योर जॉब परफॉर्मेंस। ओके जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमने किस तरह से क्रिटिसिज्म करना है। गिविंग क्रिटिसिज्म जिसे हम कहते हैं। प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब, वन मस्ट कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हाइल प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑन द जॉब। मेंटली आउटलाइन योर कन्वर्सेशन बिफोर गोइंग टू टॉक विद अ पर्सन गोइंग टू डू अ लिटिल क्रिटिसिज्म during your job. Must do it according to the outline in your mind, so that कि आपका जो कन्वर्सेशन है, जो क्रिटिसिज्म की कन्वर्सेशन है, वो जो है वो डायरेक्ट अटैक ना बन जाए। जनरली यूज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, कोशिश करें अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो जो फेस टू फेस कर लें। दैट इज़ अ फार बेटर वे टू डू अ लिट क्रिटिसिज्म फेस टू फेस। इन दैट वे एक्चुअली यू शो योर ऑनेस्टी एट्सेट्रा। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, आपका क्रिटिसिज्म का मकसद इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ना कि किसी को नीचा दिखाना। ऑफर हेल्प, अगर पॉसिबल हो तो डेफिनेटली ऑफर हेल्प इन एवरी केस। बी स्पेसिफिक व्हेन, डेफिनेटली हम जब क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है, ख़ास पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ता है और बहुत ही जो है ना वो अवॉइड करना पड़ता है ब्रॉड जनरलाइजेशन से। यानी कि जब भी हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उससे जो है वो बात बिगड़ती है, हमेशा ख़राब होता है, वो उसका कंस्ट्रक्टिव जो है पहलू ख़त्म हो जाता है। यूज़ द वर्ड वी रादर देन यू, जब क्रिटिसिज्म किया जाता है याद रखिएगा, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी कंपनी और कंपनी का हिस्सा होने के साथ साथ आपको वी लफ्ज़ यूज़ करना चाहिए, ना कि यू। यू मीन्स कि यू आर डायरेक्ट अटैकिंग ऑन अ पर्सन। अवॉइड एंगर और रेस्ड वॉइस और अब्यूसिव लैंग्वेजेस एट्सेट्रा, बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली द पॉइंट्स यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट एंड अंडरस्टैंड इट। अल्लाह हाफिज़।